Hello everyone. I'm back with another lecture on electric charges and fields, lecture number 17. So today we'll be discussing uh, on electric dipole placed in a uniform electric field. Okay. So there we will do derivation of torque, and we will discuss what happens when that dipole is placed in non-uniform electric field. Okay, and then we will move to continuous charge distribution. Okay, okay. Let's start then. What is uniform electric field? Uniform electric field is like this. Okay, suppose this is uniform electric field. All the electric field vectors are parallel. Okay, this is uniform electric field. Means everywhere in this area, everywhere at every point, the magnitude of electric field is same. Same magnitude of electric field everywhere. Such a field is called uniform electric field. Okay. Now a dipole is placed in this electric field. That dipole, my dear students, is independent dipole. Okay, which in which the distance between the positive charge and negative charge will not be affected by electric field. We had discussed in earlier videos that when a non-polar compound is subjected to an electric field, that non-polar compound also becomes non-polar molecules. Becomes a dipole, develops a dipole. Charges are separated, but here we are going to place a permanent dipole. Okay, that means a dipole taken from, you can say, taken from a polar molecules. So let us draw the dipole. हम यहाँ पे ऐसे करके डायपोल बना लेंगे, ऐसे करके. ठीक है बच्चों? ओके. तो ये रहा हमारा माइनस क्यू. ठीक है, ध्यान से देखना, ये माइनस क्यू है और ये हमारा रहा प्लस क्यू. मैं इधर कर देता हूँ प्लस क्यू. तो ये हुआ उसका बीच का सेंटर. यहाँ पे मैं और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ so that it is also uniform electric field. Okay, ये सारा electric field है. Please remember that electric field emerges from positive charge, some positive charges, and they move towards negative charges. Okay, and the dipole is placed in this manner so that its dipole moment is from minus q to plus q, right? Okay. Now we will see the behavior of this dipole in the electric field. Okay. Now let us think about the force acting on the two charges. This is positive charge, and on the positive charge the force will be in the direction of electric field. Okay, in the direction of electric field. This is QE. Remember, E equals to F upon Q. So naturally F will be QE. समझ में आया? ओके. अब इसमें इस तरफ का फोर्स लग रहा है, तो इसमें किधर लगेगा? ऑपोजिट. We know that on a negative charge the force is opposite to the electric field. है ना? कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा. या कोई भी नेगेटिव चार्ज, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है. अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू नॉट रख देंगे तो फोर्स भी उधर ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स भी उधर ही लगेगा. फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल. दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग on a positive test charge is in the direction of electric field. So
इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो यहाँ पे है, कोई बड़ा सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, उधर भी कुछ नेगेटिव चार्ज जिसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है उस तरफ कम है। अच्छा ओके, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस चीज को भूलना नहीं। और नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, सोच के देखते हैं। मान लो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि ये माइनस है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, थोड़ी देर के लिए। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन ये रहा है ना, इस तरफ। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ। ओके, दिस इज द नेगेटिव माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई। ओके, क्यू ई, और ये क्या था, प्लस क्यू ई। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पे इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, लिख लेते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल placed in a uniform electric field। इंपॉर्टेंट कंडीशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे डाइपोल को तभी नेट फोर्स जीरो होगा, अदरवाइज नॉट। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, ये था प्लस क्यू ई, दूसरा को इसको ऐड करना पड़ेगा, माइनस क्यू ई ऐड करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो ये प्लस क्यू ई दोनों इधर ही काट देते हैं, है ना। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट टू अंडरस्टैंड, ये काट देते हैं इधर, तो ये हो गया आपका एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज अंडर विच कंडीशन, यूनिफॉर्म, ये लिख देता हूं, अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Uniform electric field. Electric field is uniform, means everywhere electric field are same. The intensity of electric field are same everywhere. यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हर जगह पर सेम है। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल को रख देंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके चिल्ड्रेन, okay, now if F net acting on the dipole is zero, do we expect that this dipole will move like this? Obviously not. जितना फोर्स से वो इधर खींच रहा है उतना ही फोर्स से ये इधर खींच रहा है, तो ये तो यही रहेगा। लेकिन और एक चीज होगा यहाँ पे, there will be some other effect of this force, और this ये दोनों फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कपल, है ना। QE and minus QE act as couple, है ना, क्योंकि they are equal in magnitude। कपल कैसे, ये जो फोर्स की वजह से डाइपोल को इस तरफ रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से, है ना, इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगेगा। दिस नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इसमें जब ये फोर्स लग रहा है तो ये इसको क्या करेगा, इस तरफ मुड़ेगा और ये इसको उस तरफ मुड़ेगा, तो दोनों क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर ये मान लो ये ऐसा चीज है, यहाँ मैं यहाँ पकड़ के इसको ऐसे खींचूं और इसको यहाँ पकड़ के ऐसे खींचूं तो ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना। फॉर दैट वी नीड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, तो यहाँ पर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो बिकॉज ऑफ दिस पेयर ऑफ फोर्सेस, रिमेंबर पेयर ऑफ फोर्सेस, अकेला एक फोर्स लगाने से रोटेशन करना मुश्किल है। मान लो यहाँ पे एक सेंटर है ना, एक्सिस है, उसके चारों तरफ ऐसे घुमाना है, तो इसको यहाँ पकड़ते हैं
तो एक कोई दूसरा फोर्स यहाँ लगना चाहिए, तब ये रोटेट करेगा। हम ऐसे करते हैं, ठीक है। एक जगह पर पकड़ के घुमाना मुश्किल हो जाता है। So these two forces acting together provide a couple, and that produces a torque. तो पेपर में लिखना है कि ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड QE and minus QE act as couple, and this couple produces a torque on the dipole. Torque मतलब rotational force, means the effect of a force that causes something to rotate, something to rotate around its axis. Okay, that force is called, that measurement of that force is called torque. Torque is not that translational force. Okay, so we will discuss about torque here, how to find the mathematical expression for torque acting on this dipole. That is the major thing to discuss over here. Now let me make you clear that under this F net equals to 0, net force 0, what happens? There is no translational change. That means the dipole is in translational equilibrium. It is in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल उसका नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन नहीं हो रहा है, तो वो all the time it is in the same position. Okay, so it is in translational equilibrium, but not in rotational equilibrium. मतलब इसका रोटेशन होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि रोटेशन होगा इसका, इट विल हैव सम रोटेशन ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कपल ऑफ फोर्स। ये देख लो, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे क्यों हुआ? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इस तरफ नेगेटिव चार्ज का मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये नेगेटिव चार्जेस वगैरह है ना, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस तरफ उसका टॉर्क लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस की पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इस तरफ इन दिस डायरेक्शन इट विल हैव अ टॉर्क। ये हो गया। तो under F net equal to 0, no translational change of the body, and the dipole will be in translational equilibrium, but it will not be in rotational equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ? Even though the net force is 0, there is a torque आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में, है ना। एक कोई बॉडी रोटेट कर रहा है एक्सिस के चारों तरफ, तो एक्सिस से लेकर के जहाँ पे वो बॉडी है, जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, वो रेडियस हो गया, और जहाँ पे फोर्स लगाते हैं F, वो टेंजेंशियल हो गया, है ना, इस तरह का, समथिंग लाइक दिस। ये R हो गया और यहाँ पर फोर्स हम ऐसे लगाते हैं, तो R क्रॉस F, उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, R क्रॉस F, which is also written as RF sin theta और FR sin theta। जब sin theta लगाते हैं तो RF sin theta या FR sin theta दोनों ही सेम हो जाता है, but when you write in vector form you must write R cross F। यहाँ पहुँच के
जब इसको रोटेट करते करते यहाँ पहुंचा तो फिर ये वाला आर हो जाएगा और ये वाला भी फोर्स हो जाएगा। इसी तरह से ये चलते रहेगा आर क्रॉस आर। सो दिस इज दिस टर्निंग इफेक्ट, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, ऐसे टर्न हो रहा है। दिस टर्निंग इफेक्ट इज द टॉर्क। प्लीज रिमेंबर दिस, टर्निंग इफेक्ट इज द टॉर्क। तो वो टॉर्क हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट टॉर्क। सो इवन दो द नेट फोर्स इज 0, देयर इज अ टॉर्क। ओके, अभी टॉर्क का डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज टॉर्क ऑल अबाउट चिल्ड्रन? व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट, है ना। टॉर्क एक तरह का इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है ना, जो एक बॉडी को रोटेशन में लाता है। तो क्या लिखेंगे? द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स on a body which causes rotation around a given axis of rotation, ये होता है टॉर्क बच्चों। और वो टॉर्क के लिए कपल जरूरत है। We need the couple. Couple means a pair of force which produces a torque, and they act in along different line of action. This is very very important. ये टॉर्क प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है बच्चों, ये है, ऐसे चल रहा है, ऐसे कर रहा है, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वाला है। यानी कि कैसे हो रहा है, देखो ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो if they have different line of action, then they will produce a torque. अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा तो उसको भी फील कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। इस चीज को हम लोगों ने क्लास लेवल में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में। अच्छा, तो it will be in translational equilibrium if this force is equal to this force. देख लो इसको, ये अभी हिलेगा नहीं, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल आ रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां पर भी दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो सेम है। ये इधर से ऐसे खींच रहा है और ये इधर ऐसे खींच रहा है। तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? ये बेचारा वही रहेगा। जैसे हम लोग टग ऑफ वार खेलते हैं, है ना, टग ऑफ वार में अगर दोनों टीम बराबर फोर्स लगाए तो दोनों टीम वही का वही रह जाएगा। ओके, तो इसको फील करना है कि ये ऐसा अगर होता है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है और रोटेशन इसका होगा ही नहीं, इसका रोटेशन नहीं होगा। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहां पर F1 है, यहां पर F2 है, बाई चांस F1 ग्रेटर देन F2 हो गया तो सोचो ये उस तरफ जाएगा ना, ये फोर्स ज्यादा हो रहा है। न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, उसको रिकॉल करना है। अगर ये फोर्स ज्यादा हो रहा है, ये फोर्स कम हो रहा है, तो इसका एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन आएगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर ये बराबर हो जाता है, जैसे मैं मिटा के देख रहा हूं वैसे आप लोगों को देखना है, अगर ये बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो A इज इक्वल टू 0। So what kind of force are these called? These are also pair of forces, but these are acting along the same line of action. They will not produce any kind of rotation. किसी तरह का रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, या तो उधर भागेगा या तो इधर भागेगा। अगर डिफरेंट फोर्स है तो, अगर सेम फोर्स है तो वहीं का वहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस कपल ऑफ फोर्सेस produces a torque because their line of action are different. हम यहां जरूर लिखेंगे उस चीज को, रोटेशन। The torque on the
on the dipole is due to two equal forces QE and minus QE acting in opposite direction but along different line of action. काफी बड़ा लिखा ना। इसके वजह से टॉर्क होता है इज ड्यू टू टू इक्वल फोर्सेस QE and minus QE acting in opposite direction but along different line of action. This is very important for a torque. अगर ऐसा नहीं हुआ टॉर्क नहीं होगा। हम टैप को घुमाते हैं है ना, तो पानी निकलता है, तो उसको ध्यान से देखना। हम टैप को घुमाते हैं तो एक फोर्स ऐसे लगाते हैं और दूसरा फोर्स ये वाला एक उंगली से इधर लगाते हैं। एक फोर्स इससे इधर लगाते हैं है ना, और दूसरा फोर्स इससे इधर लगाते हैं, दोनों क्लॉकवाइज है ना। जैसे क्लॉकवाइज करने से बंद होता है टैप में और एंटी क्लॉकवाइज करने से खुलता है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन दोनों फोर्स का रोटेशन करने का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों फोर्स इक्वल होगा, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। So this is the reason why torque is produced. Is that clear? This is the reason why torque is produced. Now this torque we will find out as a mathematical expression. Okay, and the torque is given by the product of any one force and the perpendicular distance between their line of action. ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इनकी बीच की दूरी क्या है? इनकी बीच की दूरी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे P वेक्टर लिख दिया। इसकी बीच की दूरी ये है, देखो बच्चों, ये है, ठीक है, और ये। अगर यहाँ पे सेंटर है हमारा डाइपोल का, ये O है, यहाँ पे अगर ये थीटा है ना, मैंने छोटा करके लिखा, थीटा अगर है तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा। अब ये वाले थीटा को हम ले लेते हैं है ना। सपोज दिस इज A, दिस इज B and this is C. So which is the perpendicular distance between the line of action? This is the one line of action, another line of action is this. इन दोनों के बीच में ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है, और ये कैसे है? ऐसे, देखो यहाँ देखो, ऐसे है। अब इन दोनों के बीच की दूरी ये है ना, सॉरी, इन दोनों के बीच की दूरी ये है, ये, दिस इज BC। तो एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय BC करने से टॉर्क हमारा आ जाएगा। बस इतना ही है, टॉर्क आ जाएगा और फिर उसका डायरेक्शन हमको डिस्कस करना होगा, ठीक है। So have you written? Okay, I will erase it. मिटा देता हूँ। Now we will write the magnitude of torque first. Okay, and then we will discuss about the direction of torque. Then this topic will be over. So magnitude of torque is given by the product of any one force of the couple का कोई भी एक फोर्स, couple and the perpendicular distance between their line of action. Okay, magnitude of torque is given by the product of any one force of the couple and the perpendicular distance between their line of action. क्या लिखेंगे? torque
मैग्नीट्यूड में इक्वल्स टू, कोई भी एक फोर्स ले लो बेटा, क्यू ई ले लिया, क्यू ई ले लिया, है ना बेटा, क्यू ई, अच्छा, इनटू एनी वन फोर्स, इनटू ये इनटू क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, हाँ, जैसे अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा होगा, बीसी, बीसी। नाउ टॉर्क मैग्नीट्यूड क्यू ई इनटू, चलो बीसी का निकालते हैं, ये कितना है, डाइपोल हमने क्या लिया, हमें लिखना पड़ेगा, लेट अ डाइपोल ए बी इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और लेट अ डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a, 2a, ये हो गया 2a, समझ में आ गया, ये हो गया 2a, अच्छा 2a, तो ये जो हाइपोटेन्यूज 2a है और ये थीटा है, व्हाट इज BC, BC इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो 2a साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा करते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Q इंटू 2a कर देते हैं, Q इंटू 2a, अलग से कर दिया, पता नहीं क्यों किया लेकिन करने को मन किया, अच्छा, फिर बाद में E साइन थीटा, अब दोबारा करते हैं टॉर्क मैग्नीट्यूड, अच्छा, ये हमने कहीं देखा है, इसको हमने कहीं देखा है, वी हैव सीन समवेयर, ओके, इन द प्रीवियस टॉपिक्स, व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली इट इज अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये है, तो डाइपोल मोमेंट इज P E साइन थीटा। अब बात आती है दो केसेस की, ये मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये हो गया P साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, बट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, force is vector quantity, torque is also vector quantity, dipole moment is also vector quantity, okay, so you can see P and E sin theta, this kind of things where we see this kind of things, this kind of formula, where we see in cross product, okay, can you remember, A cross B equals to AB sin theta, A vector cross B vector equals to AB sin theta. If both are the vectors, then the vector product will be AB sin theta. If both are vectors and their dot product will be dot product, A dot B is equal to AB cos theta. This is from vector algebra. तो अभी P sin theta है, तो किसका क्रॉस होना चाहिए, P क्रॉस E, बट यहाँ पे दो केस आ जाता है, क्या ये P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा, लिख के थोड़ा करते हैं, अगर हम P क्रॉस E करें तो क्या होगा, PE sin थीटा, मैग्नीट्यूड में P पहले लिखो या E पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैग्नीट्यूड में, अच्छा, एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, P क्रॉस E इक्वल्स टू PE sin थीटा लिखते हैं ना, तो ये मॉड्यूलस देना चाहिए, because that side is magnitude, this side also it should be magnitude, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगेगा ऐसे ऐसे, तब जाके ये फॉर्मूला सही होगा। अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं लगाते हैं, मान लो अगर मैग्नीट्यूड नहीं लगाते हैं तो क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, PE sin थीटा n कैप, एक यूनिट वेक्टर हमें शो करना है, that unit vector will show the direction of this cross product, and cross product of two vectors is also a vector quantity. हमने पढ़ा था A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर, उसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से करते हैं, अगर मान लो A इधर है B इधर है, जब हम A क्रॉस B करते हैं तो क्या करते हैं, पहले A की तरफ फिंगर्स को फैलाते हैं और उस फिंगर्स को B की तरफ मोड़ देते हैं, जैसे मोड़ा तो हमारा थंब किधर गया, अंदर की तरफ, तो वो थर्ड वेक्टर जो C है वो अंदर की तरफ होगा, थर्ड वेक्टर C विल बी ये देखो क्रॉस,
This cross mark shows that any vector is in the direction inward, अंदर की तरफ. ऐसे अगर कोई बाहर आ रहा होगा तो ऐसे आ रहा होगा बाहर की तरफ, तो ये ऐसे डॉट होता है. तो अब देखो मोड़ के देखो, A क्रॉस B, मेरा थंब किधर है, अंदर की तरफ. दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं. हम स्क्रू का ऐसे करते हैं तो वो जो स्क्रू है हमारे बोर्ड के अंदर चले जाता है. अंदर स्क्रू का ऐसे घुमाते हैं, प्रैक्टिकली करके देखना. स्क्रू को हम ऐसे घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ चले जाता है. अगर उसको खोलना पड़े तो हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, तो वो बाहर आ जाता है. दैट मीन्स if the vector is done cross product in this direction, then the third vector, this vector which is the product, cross product, is also third vector. Okay, that third vector will be in this direction, inward, ऐसे. ठीक है. अगर हम B से स्टार्ट करते हैं, B क्रॉस A करते हैं, ऐसे. B क्रॉस A का मतलब है पहले B में ले जाओ हाथ को, फिंगर्स को B में ले जाओ और A की तरफ मोड़ो. ऐसे करके मोड़ने से क्या हुआ, ये थंब बाहर आ गया. तो अगर B क्रॉस A करते हैं, इसका डायरेक्शन इधर. इसीलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. इक्वल टू नहीं होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होता है. कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट कम्यूटेटिव. क्या लिखेंगे, A क्रॉस B को हम क्या लिखेंगे, माइनस B क्रॉस A, तब ये सही होगा. देख लो ना, A क्रॉस B ऐसे अंदर की तरफ. क्लियर. B क्रॉस A ऐसे, फिर ऐसे B क्रॉस A, B क्रॉस A, B क्रॉस A, बाहर, पहले अंदर फिर बाहर. तो अंदर का और बाहर का क्या होगा, नेगेटिव हो गया ना, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया. दिस इज द थिंग. मैं इतना क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमें ये समझना है P sin थीटा क्या करे, P क्रॉस E करें या E क्रॉस P करें, दोनों में वही आ रहा है. इसमें क्या आ रहा है, अच्छा इसमें E क्रॉस P में क्या आ रहा है, E क्रॉस P में E क्रॉस P अगर करे तो E P sin थीटा, मैग्नीट्यूड. When you write magnitude, doesn't matter how you write, P sin theta or E P sin theta, doesn't matter. सेम आता है, P E क्रॉस B में P sin theta और P क्रॉस E में P sin theta. अब कौन सा करें, ये करें या ये करें, दोनों में तो वही है, P sin theta, P sin theta. कमाल हो गया. क्या करें, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वाइज है. दो वाइज होता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये कौन सा वाइज है, ये है हमारा क्लॉकवाइज. ये भी तो क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है ना. क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नेगेटिव, है ना. मोमेंट ऑफ फोर्स क्लास 11 में जो रोटेशनल मोशन को हम लोग पढ़ते हैं, तो रोटेशन इज कॉज्ड ड्यू टू मोमेंट्स. Moment around a point through which the line of axis the axis of rotation passes, है ना. तो clockwise moment अगर है, मोमेंट से बोलते हैं, R क्रॉस F को मोमेंट बोलते हैं. अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं. तो अब यहाँ देखते हैं किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज. क्या लेंगे, क्लॉकवाइज. नेगेटिव ना पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव. अच्छा, तो ये डाइपोल क्लॉकवाइज घूम रहा है. इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर करते हैं, इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो कुछ और आएगा. लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में E इस तरफ है और ये डाइपोल मोमेंट है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, आप इसका क्लैरिफिकेशन लिखेंगे. क्या करेंगे, हियर द डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट, जिसको मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स बोला था, डाइपोल मोमेंट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, therefore torque vector equals to minus P cross E. Remember, torque vector is minus P cross E because of clockwise rotation. In this case, clockwise rotation, torque is produced. Clockwise rotation, torque is produced, and in clockwise rotation, the clockwise moment are negative. अब इसको पॉजिटिव कैसे करें? सॉरी, इसको अच्छा, ये एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा. ये तो थीटा किसके बीच में है? थीटा किसके बीच में है? पी और ई के बीच में और ई और बी के बीच में. किसके भी बीच में? पी और ई के बीच में या ई और बी के बीच में. थीटा कहने का मतलब है, यहाँ देखो, ये एक मान लो ए है और ये बी है, तो कहते हैं एंगल इज बिटवीन ए एंड बी, नॉट बी एंड ए. ए से बी की तरफ एंगल जा रहा है, पॉजिटिव एंगल. वी आर डीलिंग विथ पॉजिटिव एंगल्स. पॉजिटिव एंगल का डायरेक्शन देखो ऐसे आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज. When the ray rotates in anti-clockwise direction, then theta is positive. So we are dealing with positive theta. अगर थीटा नेगेटिव होता तो पहले से नेगेटिव हो जाता. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना, ये मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा. साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, बट दिस थीटा वी हैव टेकन एज पॉजिटिव. ये ऐसे ये थीटा. अगर थीटा पॉजिटिव है तो पहला वाला वेक्टर यहाँ होगा, पहला वेक्टर यहाँ होगा, दूसरा वेक्टर यहाँ होगा, तो ऐसे करके ऐसे ये ए क्रॉस बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, ई है, एंगल बिटवीन ई एंड पी, ये पी वेक्टर ई एंड पी है ना, एंगल बिटवीन ई एंड पी. तो आपको इसको लिखेंगे ई क्रॉस पी, इसको लिखेंगे ई क्रॉस पी. देखना, ई क्रॉस पी माइनस ई क्रॉस पी. क्यों? यहां लिखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मोमेंट देखो, और क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट. ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन एंगल बिटवीन ई एंड पी है. पहले ये आता है तब ये आता है. कभी भी ऐसा नहीं होता है, मान लो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो ए वेक्टर यहाँ होगा, बी वेक्टर यहाँ होगा. अगर बी को हमने यहाँ कर दिया तो वो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, है ना. अगर आप ए क्रॉस बी बोलते हैं और बी को यहाँ लिखते हैं, ए क्रॉस बी, एंगल नेगेटिव हो गया. हाँ, अगर फिर दोबारा हम ए क्रॉस बी बोलते हैं, हाँ, तो ए को यहाँ लिखते हैं तो सही आ जाएगा, ए क्रॉस बी पॉजिटिव एंगल. ये है. तो ये जो ई क्रॉस बी हम लिखने जा रहे थे, ई क्रॉस पी इज एक्चुअली नेगेटिव बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना. ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये मोमेंट ऐसे आ रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन दिखा दिया. आप देखो क्या होगा, तो सीधा करो पी क्रॉस बी, ठीक है. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क. अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था मोमेंट, तो हमने इसको पी क्रॉस ई नहीं किया, ई क्रॉस पी कर दिया, है ना, ई क्रॉस पी कर दिया और माइनस साइन लगा दिया एंटी क्लॉकवाइज के लिए. तो ई क्रॉस पी क्यों किया, ई क्रॉस पी क्यों किया वो देखना है. ई क्रॉस पी इसलिए किया कि यहाँ थीटा हमने पॉजिटिव लिया था. अच्छा, और माइनस इसलिए किया कि ये क्लॉकवाइज आ रहा था, क्लॉकवाइज आ रहा था, इसलिए माइनस कर दिया. तो अब इसको फिर इसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो पी क्रॉस ई हो गया. ओके, जस्ट लाइक बी क्रॉस ए
माइनस बी क्रॉस ए इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, तो ये बी क्रॉस ए आ गया। अच्छा, अब हम माइनस बिना किए नहीं कर सकते क्या, ऐसा करना पड़ेगा। और इसको अगर हम ओरिएंटेशन चेंज कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, हाँ, और डाइपोल को ऐसे रख दूं, तो देखना कैसे आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने डायपोल को ऐसे रखा, ऐसे रखा, मान लो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। अब ये रोटेट कहाँ से करेगा, मिड पॉइंट में एक एक्सिस होगा, मिड पॉइंट में ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। क्यों, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। प्लस क्यू माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस क्यू प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये कौन सा वाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज पहले से है, एंटी क्लॉकवाइज पहले से है। हम ये फिगर बना के भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये एंगल मैंने क्या मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ही देखो, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। यहाँ इसका फोर्स लगेगा इधर ऐसे, ये क्या हो जाएगा, क्यू ई पॉजिटिव। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये उधर लगा, ये इधर है ना, यहाँ लिखता हूँ ऐसे, माइनस क्यू ई। तो बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई, देयर विल बी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज पहले से है, अब हम क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला कहाँ, क्या करें, टॉर्क यही लिखता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू, और यहाँ देखो ये छोटा सा एक डिस्टेंस कर दिया, ये वाला, ये छोटा सा ट्राइंगल। अगर ये थीटा है, यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल सी हियर। इसको समझो ठीक से, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, एंगल थीटा, और यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, ये थीटा, ये भी थीटा, देखो डॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 90 इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल छोटा सा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स ये वाला, ये हो गया हमारा बेस। अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो AC इज द बेस, AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो AC का फॉर्मूला क्या आएगा, ये लेंथ है 2a, हाइपोटेन्यूज टाइम्स cos थीटा, बेस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स cos थीटा। लेकिन थीटा यहाँ थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2a cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब देखो ये बन गया P, Q इंटू 2a, PE sin थीटा। क्या लिखेंगे, टॉर्क वेक्टर को दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे P क्रॉस E, बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इट्स पॉजिटिव ऑलरेडी, नो नीड टू रिवर्स। तो यहां से डायरेक्ट P क्रॉस E आ गया। आपके टेक्स्ट बुक में ये है, यहां से डायरेक्ट निकाल दिया है, मैंने एक दूसरा एस्पेक्ट दिखाया। You can do this also, doesn't matter,
बट इन पेपर डू एनी वन। अगर ये करते हो तो यहाँ नहीं भूलना, पी ई साइन थीटा आने के बाद यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में माइनस लगा देना और साइड में लिखना क्लॉकवाइज मोमेंट, इसके लिए माइनस लगा, ठीक है। और ई क्रॉस पी क्यों लगा? ई और पी में एंगल है, यहाँ देखो यहाँ, लेकिन एंगल का डायरेक्शन सही है, ये पी है हमारा, सॉरी ये नहीं, पी ये है, ये वाला पी डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू टू क्यू डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये वाला मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, पी क्रॉस ई एंगल पॉजिटिव की डायरेक्शन में, पी क्रॉस ई पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पे पहले ई है, ई क्रॉस पी है ना, तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी है, और थीटा का पॉजिटिव डायरेक्शन यही होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको हम क्या लिखना चाहिए? ई क्रॉस पी लिखना चाहिए, ई क्रॉस पी लिखा, ई क्रॉस पी, लेकिन अब ये रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है, इसके लिए माइनस लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, ओके। सो बट इफ द डेरिवेशन कम्स you can do either this or this, इसको भी लिखने का तरीका वही है, let a dipole AB is placed, dipole AB of length 2a is placed in a uniform electric field, है ना, such that dipole moment makes an angle of theta with electric field। यहाँ पर क्या लिखना है? such that direction of electric field makes an angle theta with dipole moment, इस तरह से लिखना है इसमें, है ना। ये इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है, अच्छा, क्योंकि जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, जब एंगल ड्रॉ करते हैं एक सिंपल सा ज्योमेट्री में, जब एंगल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले बच्चे क्या सीखते हैं? पहले ये सीखते हैं ऐसा, फिर वहां बच्चों को बताया जाता है कि देखो भाई ये रे है, यहां से आप और एक रे को रोटेट करो ऐसे, ये रे जो है ऐसे यहाँ पे आ गया, P1 में आ गया, कुछ एंगल बना इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव, फिर ये रोटेट करते करते फिर यहाँ पहुंच गया, उसको बोलते हैं 90 डिग्री, फिर यहाँ पहुंच गया, उसको बोलते हैं 180 डिग्री। सो इन दिस डायरेक्शन इट इज रोटेटिंग, देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, करते करते 360 डिग्री हो जाता है। अगर ये जो रे है इसको अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो नेगेटिव थीटा आ जाएगा, एंड वी आर नॉट डूइंग फॉर नेगेटिव थीटा, इस चीज को समझो, इसलिए ये माइनस लगाना पड़ा। ई नीचे था, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पी उधर था, लेकिन इसमें पी नीचे है और ई ऊपर है, तो ऐसे पॉजिटिव एंगल, तो पी क्रॉस ई डायरेक्ट आ गया, ई नीचे है पी ऊपर है, तो पॉजिटिव एंगल तो ऊपर ही जाएगा, ई क्रॉस पी, हाँ, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट टॉप ई क्रॉस ऐसे नहीं हो रहा है, टॉप ऐसे हो रहा है, इसलिए माइनस देके लिख दिया और इसको अरेंज करके पी क्रॉस ई लिख दिया। क्लियर? दिस इज द टॉप, दिस इज द टॉप, दिस इज द टॉप, टॉप पी साइन थीटा, टॉप पी क्रॉस ई, टॉप पी क्रॉस ई, टॉप पी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड, ये था, ठीक है ना। बस इतना करने से झकास नंबर आ जाएगा। अब एक चीज है माय डियर चिल्ड्रन, ये तो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था यूनिफॉर्म एक्सटर्नल, हाँ याद रखना, एक्सटर्नल फील्ड पहले से बना हुआ था, डाइपोल ने फील्ड नहीं बनाए, कंफ्यूजन नहीं होना। डाइपोल तो फील्ड बनाता है अपने तरीके से, एक्सिस में बनाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट में बनाता है, या कोई एक जनरल पॉइंट में बनाता है, ठीक है ना। ये सारा डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। और ये था क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वाज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को कुछ नहीं करेगा, डाइपोल को माने बड़ा नहीं करेगा। मान लो छोटा सा है डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया तो बड़ा हो गया, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। डाइपोल इज इंडिपेंडेंट, इसकी अपनी मर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये लंबा या छोटा नहीं होगा, हाँ रोटेट करेगा। यहां पर लिखते हैं हम लोग कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is given by P cross E, which is normal, ऐसे आ रहा था ना बाहर की तरफ, है ना। अच्छा, P क्रॉस E ऐसे देखो, और यहाँ पे क्या था, E क्रॉस P था, माइनस करके तो P क्रॉस E हो गया, है ना। तो P क्रॉस E, है ना, माइनस कर देने से क्या P यहाँ आ गया, जैसे उसको माइनस किया तो P यहाँ पे आ गया, E यहाँ पे दबा दिया, ऐसे सोचना पड़ेगा, सिर्फ सोचना है। तो P क्रॉस E करने से क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द पेज एंड आउट ऑफ इट, मतलब ऐसे डॉट, अगर बाहर आता है तो डॉट, अंदर घुस रहा है तो क्रॉस। ये डायरेक्शन भी एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे स्पेशल केस, मतलब मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, -q + q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे डाइपोल का मोमेंट ऐसे। तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइंड है। पता है डाइपोल क्या करता है, डाइपोल की टेंडेंसी क्या है, डाइपोल में लगने वाला टॉर्क की टेंडेंसी क्या है। द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क इज दैट इट अलाइंस द डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बार बोल रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क ऑन द डाइपोल is that it aligns the dipole moment in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट को रखना चाहता है वो, इसीलिए वो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ गया, और ये वाला ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था डाइपोल मोमेंट, तो ये ऐसे आके ये डाइपोल मोमेंट यहाँ आ गया, यहाँ आना चाहता है, ऐसे आना चाहता है। और यहाँ पे क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल था, ये P था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ आना चाहता है P। देख लो, अंदर की बात है ये। द टॉर्क ऑन द डाइपोल मोमेंट हैज अ टेंडेंसी टू अलाइन द टॉर्क ऑन द डाइपोल हैज अ टेंडेंसी टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा है, अगर वो टॉर्क वो डाइपोल या डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में अगर आ गया तो एंगल कितना होगा, थीटा 0 दोनों के बीच में। जब एंगल थीटा 0 हो गया दोनों के बीच में, तो क्या होगा, ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, नो टॉर्क, टॉर्क मिनिमम, टॉर्क लगेगा ही नहीं। क्यों लगेगा टॉर्क? मान लो इसको मान लेते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो डाइपोल ऐसे खड़ा है, ऐसे, तो यहाँ आने के लिए कुछ फोर्स लगेगा इसको यहाँ लाने के लिए। टॉर्क विल एक्ट अ फोर्स टू ब्रिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक लाने के लिए उसको कुछ फोर्स लगेगा, कुछ एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ कुछ टॉर्क लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी अगर यहाँ आ चुका है, ऑलरेडी ये यहाँ पे आ चुका है,
तो क्या फोर्स लगेगा इसमें? ऑलरेडी तो आ चुका है मिनिमम टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क वो हो गया, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम कब लगेगा? जब ये सीधा खड़ा होगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल ऐसे है, तो यहां से उसको रोटेट करके यहां लेके आना है मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डाइपोल मोमेंट मैंने क्या कर दिया? यहाँ माइनस है ना, माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू है ना। ये ऐसे रिपेल कर लेंगे इसको, ऐसे ऐसे। तो मैक्सिमम यहाँ पे होता है। तो अब देखते हैं, हमने डायग्राम बना करके मैक्सिमम दिखा दिया और मिनिमम भी दिखा दिया। मैथमेटिकली कैसे करेंगे? when theta equals to 90 degree sin 90 degree is equal to 1 maximum value. Do you know that 1 is the maximum value of sin theta? Therefore torque maximum, torque, अरे भाई काला हो गया, torque maximum is equal to PE sin 90. That means PE. Maximum value of torque is PE. Minimum value when theta equals to 0 or 180 degree, sin theta is minimum. That is 0. देख लेना, साइन 0 में 0 होता है, साइन 180 में भी 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला 0 आ गया। तो टॉर्क मिनिमम क्या हो गया? टॉर्क मिनिमम क्या हो गया? टॉर्क मिनिमम हो गया PE साइन 0 डिग्री बोलो या PE साइन 180 बोलो, दोनों 0 हो जाएगा। 180 डिग्री दोनों 0 हो जाएगा। So minimum torque is 0. Maximum torque is P. Under which condition? When the dipole, अब यहाँ देखते हैं maximum के लिए, when the dipole moment is perpendicular to electric field, याद रहे 90 degree है ना, कहीं भी conception slip नहीं होना है ना, logically सही होना चाहिए। अब इसमें under which condition the torque will be minimum? जो ऑलरेडी अगर पैरेलल में है ना, P पैरेलल टू E और P एंटी पैरेलल टू E, एंटी पैरेलल टू E 180 डिग्री वाला। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर मिनिमम टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। अब इस टॉपिक में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज रखा है, प्रॉपर्टीज। डाइपोल मोमेंट क्या है, टॉर्क क्या करता है, टॉर्क क्या करता है। अरे ये तो कैसे क्वेश्चन हो गया, टॉर्क क्या करता है? टॉर्क घुमाता है ना, रोटेट कराता है, सिर्फ रोटेट कराता है। रोटेट अब हमको देखना पड़ेगा रोटेट क्यों कराता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में लाने के लिए। टॉर्क produces an effect, a turning effect, produces a turning effect, produces a turning effect on the dipole, in order to align, मतलब एक लाइन में लाना, align dipole moment in the direction of electric field। ये रहा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो एक टॉर्क आता है, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया,
मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, मिनिमम टॉर्क कितना होगा, और उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है वो, मतलब पोजीशन चेंज नहीं करता लेकिन रोटेट करता है। रोटेट करता है किसकी वजह से? कपल की वजह से। कपल क्या है? पेयर ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, है ना, ये सारा चीज। और टॉर्क का यूनिट अभी नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, तो मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क हो गया, टॉर्क का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया, वेक्टर फॉर्म भी हो गया। और टॉर्क करता क्या है कि डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो अब यूनिट लिखेंगे। अब यूनिट ऐसा यूनिट, ठीक है, एनआरटी में मत जाओ, बहुत गंदा एनआरटी है। यूनिट ऑफ टॉर्क निकालो बच्चों। टॉर्क का यूनिट फॉर्मूला क्या है? पीई साइन थीटा। व्हाट इज पी? क्यू इंटू 2a। व्हाट इज ई? न्यूटन पर कूलम। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं है। क्यू का क्या है? कूलम, और ये इसका मीटर इंटू न्यूटन पर कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, क्या हो गया? न्यूटन मीटर। अच्छा, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 11 वाला टॉर्क, न्यूटन मीटर। हाँ, वही टॉर्क तो है ये, लेकिन ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। और वहां पे क्या था? वहां पे कौन सा फोर्स था? लीनियर फोर्स, न्यूटन्स फोर्स वहां पे था, है ना। न्यूटन फोर्स था, वहां मीटर आ गया, है ना, न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, याद रखना। और डायमेंशन क्या होगा टॉर्क का? डायमेंशन सॉल्व करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन टॉर्क का क्या है? वो न्यूटन मीटर। न्यूटन का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर, तो हो गया केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो हो गया केजी का क्या होता है? मास 2, मीटर का क्या होता है? लेंथ 2, सेकंड का क्या होता है? टाइम माइनस 2। ml2 m2 l2 t minus 2 is the dimension of torque। अच्छा, ये तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो यहाँ पे जो E2 है और यहाँ पे E1 है, तो E2 तो कम होगा ना, E2 तो कम हो जाएगा E1 से। नजदीक में ज्यादा होता है, दूर में कम होता है। E2 कम हो गया तो मैं इसको कैसे इंक्रीजिंग फील्ड बोल दूँ? ये एरो मार्क जो है ना, ये किसी चार्ज से निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग हो रहा है। यानी कि इस तरफ अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पास में कहीं नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पॉजिटिव से। तो उस चार्ज के नजदीक में तो ज्यादा फील्ड होगा, दूर में कम होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, वहां पहुंचा ज्यादा, और वहां पहुंचा और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम नहीं है। ऐसे केस में सिर्फ इतना याद रखना है हम लोगों को कि डाइपोल मोमेंट के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, देयर विल बी डिफरेंस इन फोर्स। कैसे? देख लो, इसको भी दिखाई देता हूं। मान लो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंक्रीजिंग, इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो अगर मैं इस पॉइंट को E है, इस पॉइंट को मैं E1 मान लूं, E2 मान लूं, इस पॉइंट को मैं E1 मान लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ थोड़ा कम यहाँ ज्यादा, तो E2 माइनस E2 इज ग्रेटर देन, यहाँ लिखते हैं
यहाँ लिखता हूँ E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर यहाँ पे एक डाइपोल रखा, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म, बार बार बोल रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ मैंने क्या रखा, डाइपोल रखा, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इसके ऊपर फोर्स ज्यादा फोर्स लगा, F प्लस क्यू। इस जगह पर, इस प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो इसके ऊपर फोर्स कम, इधर कम मतलब छोटा सा वेक्टर, वो बड़ा सा वेक्टर, ये हो गया F माइनस क्यू। देख लो डायग्राम, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो F नेट, F प्लस क्यू प्लस नेगेटिव F माइनस क्यू हो गया। अब F प्लस क्यू माइनस F माइनस क्यू, F net, it is not zero, it is finite. If the dipole is placed in non-uniform electric field, then the net force will not be zero, but torque may be zero or may not be zero. It depends. It depends on the orientation of the dipole. Dipole कैसे रखा है उस फील्ड में, है ना। अगर और एक देखो यहाँ पे, अगर तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, नेट फोर्स का डायरेक्शन, F नेट का डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंक्रीजिंग फील्ड का, इंक्रीजिंग फील्ड। So net force will be in the direction of increasing electric field. इधर हुआ ना, देखो दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप उसको डाइपोल को क्या करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। मैंने पहले बोला था प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे ज्यादा फील्ड, यहाँ पे कम और कम, डिक्रीजिंग फील्ड होता है वो, पॉजिटिव चार्ज निकालने वाला। लेकिन यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया है कि जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगा, ऐसा फील्ड सेट किया है। अच्छा, तो क्या होगा, मान लो अब डाइपोल को क्या कर दिया, डाइपोल को उल्टा रख दिया। कैसे उल्टा, प्लस क्यू को इधर और माइनस क्यू को इधर, ये वाला ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फील्ड इसको E1 मान लेते हैं, नहीं E2 और ये E1। यहाँ पर E2 क्या है, E2 इज मोर, ज्यादा है, और E1 कम है ना। तो ये यहाँ पे ज्यादा फील्ड है, ध्यान से देखो, ये ज्यादा फील्ड है, तो ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। किस तरफ लगाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है ना, हाँ, ये लगाएगा इधर लगाएगा, ठीक है, ये। और यहाँ पे कम फील्ड है, तो नहीं, इसको इधर लगाएगा, सॉरी, इधर ज्यादा हुआ ना। अच्छा, एक मिनट हुआ, इधर this is negative, this is positive, and इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है, इसके ऊपर कम लग रहा है, नेगेटिव। इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है तो नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव तो हर हाल में इधर ही आएगा, नेगेटिव इधर आएगा। नेगेटिव के ऊपर फोर्स इधर ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है। मतलब यहाँ पे ऐसा सिस्टम किया है कि अलग अलग साइड, अलग अलग चार्ज रख दिया होगा, पॉजिटिव चार्ज और छोटा चार्ज, फिर बड़ा चार्ज, फिर बड़ा चार्ज रख दिया है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा और ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो ऐसा सिस्टम है इमेजिनरी वर्ल्ड। अच्छा, तो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स इधर लगेगा जैसे यहाँ लग रहा है, तो लेकिन ये फील्ड ज़्यादा है, इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा ये फोर्स माइनस एफ क्यू, और ये फील्ड कम है, इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, किधर लगेगा, उधर ही लगेगा, ऐसे एफ प्लस क्यू। तो एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट हो गया एफ माइनस क्यू माइनस, नहीं ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला इधर है और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव एफ प्लस क्यू, लेकिन ऐसे ही आ गया एफ पॉजिटिव क्यू माइनस एफ नेगेटिव क्यू, ये आ गया। तो लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, एफ नेट का डायरेक्शन है, एफ नेट का डायरेक्शन क्या है, एफ नेट डायरेक्शन किधर, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो इधर ये रहा एफ नेट का डायरेक्शन, और इंक्रीजिंग फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये क्या है, इंक्रीजिंग फील्ड, इंक्रीजिंग फील्ड मतलब the direction of net force is opposite to increasing field। इधर increasing field है लेकिन ये इधर एक्ट कर रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, when dipole is placed in non uniform field। clear? So this was all everything about torque placed in uniform field first we did, and a little bit non uniform field। लेकिन non uniform field उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस के लिए। यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क रखना, डाइपोल को रखना और उसका टॉर्क निकालना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने सोचा था आज करूँगा लेकिन वो कवर नहीं हुआ। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and charge density, and then we will enter into flux and then Gauss law. Okay, till then keep studying. Thank you.